from the guts. हमारे दादा दादी सब लोग बोलते थे अपना पेट साफ रखा करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया पेट साफ नहीं है. But ideally that is true. Now allopathy, now we have come into understanding and we have made. Yeah. And this colon hydrotherapy will make your gut like a reset button. You put it on your phone. So fresh. You don't want a disease, clean your guts. Right. You are already diseased, clean your gut. You have recovered from a disease, you don't want a disease again, keep your gut clean. Far infrared sauna bhi I've heard is Far very good. infrared sauna is very popular abroad. Far infrared has a deeper penetration. Okay. It goes deep inside your skin and up to the the bones. subcutaneous fat. These cases brought me international icon award. मुझे थाईलैंड में awards मिला. फिश स्किन ग्राफ्टिंग जो इंडिया में पहली बार मैंने किया था. Yes. उसका अवार्ड मुझे थाईलैंड, मतलब जो केस मैंने फ्री में किया था. Yeah. थ्रू आफ्टर सीइंग ए वीडियो, वो मुझे ले गया थाईलैंड इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड लेने के लिए. Namaste everyone. Today we are with a very interesting and special personality, Dr. KVNN Santosh Murthy ji, who is a pediatric and burn surgeon. Welcome, sir. Hope you are doing well today. Yeah. Can you please tell me about this beautiful wound healing center right here? What inspired you to build it? Also, when I searched on Google, this was the only center in India. We didn't find any other wound healing center as such in India. What's so special about it? Yes, you are actually right. The advanced wound healing clinics, if you search in Google, in India, this is the only one. After that, the next you will see in Pennsylvania, Germany, US, UK and other parts. So basically I think people are not aware of wounds healing. Not just people, even doctors are not aware of wounds healing. Why doctors are not aware of wound healing? Because wound healing is something which is so dirty and you have to make it normal. You know, so not everybody is interested in healing the wounds. What I mean to say is, even there is no such department by the medical council where wounds are being treated in a separate entity. Right. You will see there is no hospital in India which is exclusively working on wounds. Right. And people often ignore it and they don't consider it as something major, but deep down it's a root cause of many other illnesses. Very true. So what exactly is happening is, लोग कैसे होते हैं, जब तक उनको दर्द नहीं होता ना, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं. Yeah. And wounds, when it is acute and chronic, there are two different things. Acute wounds में क्या हो रहा है कि उनको चोट लगती है, they are in pain and agony. They rush to the hospital, meet the doctor, do something and done. Chronic wounds, especially in diabetic foot wounds, Right. the patient don't have sensation, they don't have pain, they walk. ऐसा कहते हैं, the diabetic patients walk till death. Because उनको sensation है नहीं, उन घाव पे ऐसे ही चलते रहते हैं. And they end up into something else. Number one. Number two, the diabetic foot wounds are foul smelling, infected, and वो ठीक होगा नहीं होगा. There is, people don't know. So many things are there. And when it comes to another major aspect, major thing in wounds you see is burns. Right. Burns is something which nobody wants to go near to the patient, don't want to touch them. But so what is happening is, in this fast moving world where people want their wounds or their treatment to be done in a quick way, you know, so जैसे फीवर आ गया पैरासिटामोल ले लिए, कुछ आ गया कुछ ले लिए, कुछ दवाई ले लिए, कुछ दर्द हुआ इमीडिएट सर्जरी कर दिए, छोड़ दिए. Quick, because they are so much involved in their busy in their regular life कि वो ज़्यादा इस पे टाइम नहीं देना चाहते हैं. That is people mindset.
It's also somewhere a bit traumatizing, like the burn wounds. सो सोसाइटी में बर्न्स पेशेंट्स को दे आर बीइंग सेग्रीगेटेड, Yeah. उनको सोसाइटी में इंक्लूड नहीं किया जाता है. एंड इवन बर्न्स पेशेंट बचना वैसे मुश्किल, अगर बच गए तो क्यों बचे करके वो लोग डिप्रेशन में जाते हैं. Right, and then there's like they have to survive for long, and then it also affects their mental health, mental well-being. Very Physical, bad. though already they are suffering. So burns is a major segment in wounds, and podiatry, where this diabetic foods, is another major segment. Right. So when these things are happening, what is happening is उन patients को ज़्यादा time लगता है to treat them. Okay. It takes months together to treat them, months together to heal them and bring back to their regular lifestyle. So उन पे जितना टाइम हम लोग को स्पेंड करना है, जिस पे guaranteed results भी नहीं है, so people neglect it. Doctors even neglect them. Right. So, Very few doctors will be totally into this thing, because you need to be passionate to do that. right. So, sir, आपकी लाइफ में on a personal level, what was that trigger point? या what was that inspiration that inspired you to build this center? Very true. Actually, the story starts, since my childhood. There are many stories to say. I can't see somebody in pain and suffering. वो मुझे थोड़ा हमेशा किंच कर, अरे they are suffering. कोई ऐसा इंसिडेंट था आपकी लाइफ में कि आपने कुछ देखा हो और उस चीज़ की वजह से आप नहीं देख सकते? There were many incidents which were inspiring me कि मैं किसी को पेन में नहीं देख सकता. I can't see a woman giving birth to a child, she's in pain and agony. Okay. So I wanted, तब मैं सोचता था अगर मैं डॉक्टर बनूंगा तो ऐसी कुछ चीज़ फाइंड आउट करें जिससे कि बिना पेन के उसको डिलीवरी हो जाए. मैं ऐसा सोचता था. You see, any animal on this earth never cries while giving birth. Have you seen? Other than a female Yeah. human being, है ना? So that pain is actually troublesome. एक चीज़. दूसरा, जब मेरे पास wounded patients आते थे, जब मैं MBBS ख़त्म किया था, I've seen कि मैं एक हॉस्पिटल में काम करता था. So एक पेशेंट आया था जिसका पैर काट देना था. Oh. They didn't want an amputation because he was a diabetic. पैर काटना था उसका, तो वो कटवाना नहीं चाहता था. बेटा अपने बाप का पैर कटवाना नहीं चाहता था. तो वो 4 जगह घूमा, फिर यहाँ आया, वहाँ आया, मेरे पास आया. I was very new, I just finished. तो मैं उसको डेली ड्रेसिंग करता था, एकदम केयर देके, एकदम with a lot of giving him lot of belief कि हाँ ये ठीक हो जाएगा. And I was also very new, मुझे भी एक पेशेंट को ठीक करना था. So I used to spend lot of time. And जिस हॉस्पिटल्स में, जिस मेडिकल कॉलेजेस में वो पेशेंट गया और उसको बोला कि पैर काट देना है, आफ्टर 3 months द पेशेंट बिकेम ऑल राइट. इसका मतलब, सी, आई वॉज वेरी न्यू दैट आई जस्ट फिनिश्ड MBBS, एंड इफ आई कैन सेव द लिम्ब, इसका मतलब वो उतना सीरियस कंडीशन नहीं था. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स वुंड्स विच वी आर डीलिंग विथ नाउ. शायद उस समय वो पेशेंट उतना सीरियस नहीं था. Just because wound है and they don't want to spend time healing on it, they just want to chop it off. So और जब मैंने उसको थोड़ा सा प्यार दिया, उसको बहुत with lot of care and affection when I was treating the patient, I think that made the wound heal. इसका मतलब कि जब हम किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं या क्योर करने की कोशिश करते हैं, इट्स नॉट जस्ट ऑन अ फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल पे और एनर्जेटिक लेवल, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट. 100% मैम, because what I believe is I have treated hundreds of patients. I don't say all the hundreds of patients became all right, but those who became all right, they were at their best. फ़र्क मैंने क्या महसूस किया है कि जो पेशेंट्स होते हैं, इफ़ दे हैव ट्रस्ट, इफ़ दे हैव बिलीफ इन यू, इफ़ द बिलीफ सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट बिलीविंग द डॉक्टर, अगर उनको ज़ील है ज़िंदगी में जीने का कि मुझे फिर से खड़ा होना है, फिर से मुझे जाना है, फिर से मुझे अपना सारा काम करना है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ़ माई फैमिली, आई नीड टू गेट बैक टू वर्क, जो वो ज़ील अंदर रहती है,
एट द सेम टाइम ही हैज़ बिलीफ ऑन द डॉक्टर कि हाँ ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा. Right. ये दोनों चीज़ें जब होती है ना, then you get those miracle results. True. Would you like to share any of such stories, like आपके पेशेंट की कोई ऐसी स्टोरी हो जो कि बहुत स्पेशल है? मैम इन डिटेल में तो बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट आई विल टेल यू वन स्टोरी which inspired me to start advanced wound healing clinics. Sure. There was a lady. I was not in Hyderabad. मैं दूसरे प्लेस में था, नलगोंडा करके एक छोटा सा है. So where I started my career as such. So I'm actually a general surgeon, and then I did my laparoscopy, and then I did my endoscopies, and I was totally full-fledged with my procedures and all. तब मेरे पास wounded patients आए. तो एक लेडी आई थी. आई वॉज इन टू वूंड्स ऑल्सो, क्योंकि मुझे हीलिंग में आई वॉन्ट द वूंड्स टू हील एंड मेक द पेशेंट कम आउट ऑफ द सफरिंग एंड गेट बैक टू हिज वर्क. द थिंग वॉज देयर. सो पहला इंसिडेंट क्या हुआ था, एक मस्जिद में कुकिंग करने आया था एक आदमी दिल्ली से. Okay. क्योंकि जमात होता है उनका. हाँ. जमात होता है. Yeah. So, जमात में वो लोग आए थे कुकिंग करने के लिए. दिल्ली से आया था, कुछ मीटिंग था उन लोगों का. दे वर इन नलगोंडा. सो दैट मैन हैड ऑयल बर्न्स इन हिज हैंड. हाथ जल गया, उसके पास पैसे थे नहीं. तो मस्जिद वालों ने 5 रुपए 10 रुपए कलेक्ट करके कुछ पैसा इकट्ठा करके वो पेशेंट को मेरे पास लेके आए थे. क्यों मेरे पास लेके आए? बिकॉज उनको नज़दीक में यही हॉस्पिटल दिखा और थोड़ा बहुत नाम था मेरा कि सर्जन है, अच्छी सर्जरीज करता है, तो पता किया और मेरे पास लेके आए. जला हुआ पेशेंट है, कायदे से उसका रूल क्या है, यू नीड टू डिब्राइब इट नाइसली, क्लीन इट नाइसली, एंड देन उसके ऊपर कोलाजन एप्लीकेशंस करना है, उसको पैकिंग होता है. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन इट. बट द मैन वाज नॉट अफोर्डेबल. जो चंद पैसे लेके आया था उससे उसका इलाज तो हो नहीं सकता था. जस्ट पेशेंट आने के 2 दिन पहले मुझे एक वीडियो मिला. उस वीडियो में क्या था कि कहीं फॉरेन में मछली का चमड़ा लगा के वो लोग बर्न्स पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं. ओह. या सो आई हैपन टू सी द वीडियो एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 days, देखिए हाउ द थिंग्स चेंज्ड. जस्ट एग्जैक्टली आफ्टर 2 days दिस मैन केम टू मी विद बर्न्स. सो आई टोल्ड देम, सी अगर आप कोलाजन एप्लीकेशन ये सब नहीं कर पाते हैं, देन आई विल डू वन थिंग. आई विल treat you with fish skin grafting, and this is still not in India, and अगर हम लोग करते हैं उसका रिजल्ट्स क्या आते हैं मुझे भी नहीं मालूम, but something better than nothing. If you give me consent, I'll do it. वो लोग बोले सर कुछ कर दीजिए बेचारे का. वो लोग गवर्नमेंट में तो मुझे मालूम है कैसे होता है, so I don't want him to struggle. कुछ कर दीजिए, दिल्ली चला जाएगा उसके बाद, ऐसा वो लोग बोले. तो मैं मछलियाँ मंगाया लेक से, और उसका जिस तरह वीडियो में था, आई डिड एन एक्सपेरिमेंट. आई हैव डन दैट. फिश स्किन लगाया, उसको 3-4 दिन रखा हॉस्पिटल में. मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है, बट वो अच्छा चिपक गया. ओह. हाँ. एंड अच्छे रिजल्ट्स आए उसके? अच्छा चिपक गया. उसके बाद 5 दिन के बाद पेशेंट सेड सर नाउ आई एम पेन फ्री, आई एम डूइंग गुड, मुझे ठीक लग रहा है, एंड आई वॉन्ट टू गो बैक टू दिल्ली. आई सेड चिपका है, अभी उतरा नहीं है, नीचे घाव कैसा रहता है नहीं मालूम, स्किन आएगा नहीं मालूम, बिकॉज जनरली इन कोलाजन एप्लीकेशंस में स्किन आ जाती है 1 or 2 एप्लीकेशंस में. सो ही वाज लाइक सर आई हैव कम हियर फॉर सम पर्पस, दिस इज़ नॉट माई होम टाउन, आई नीड टू गो बैक. ठीक है करके वो मेरा नंबर लिया, चला गया. जाने के 15-20 दिन बाद उसने मुझे एक फ़ोटो भेजा दिल्ली से. ओके. देखा तो उसको पूरा वो फिश स्किन जो लगाए थे पूरा उतर गया. आई विल शो दोस पिक्चर्स आल्सो. एंड इट वाज नाइस, पिंक शेड आ गया था, नाइस एपिथेलाइज हो गया था वो. ओह वाओ. सो इट वाज द काइंड ऑफ उनका असली स्किन का फॉर्मेशन होने लगा आ रहा था. मतलब जो फिश स्किन उतर गई थी और ये असली स्किन की फॉर्मेशन आ रही थी. Wow, wonderful. Yes. Means and then the patient sent me pictures again after 15 days. Means almost मेरे पास से जाने के 1-1.5 महीने बाद उसने फिर फोटोज भेजा. जैसे ये नॉर्मल स्किन है वैसे ही था. Beautiful. So that मुझे इतना पॉपुलर हो गया मैं वहाँ पे कि सर जो है वूंड्स ऐसा हील करते हैं. एंड उसके बाद फिर इमीडिएटली विद इन अ वीक 10 days टाइम मुझे एक और पेशेंट आया
जो पानी पूरी चलाते थे वो लोग, उनका लड़का था, और गलती से कुछ हॉट वाटर में कहीं गिर गया, एंड ही हैड 40% बर्न्स. सो इवन दे वर नॉट अफोर्डेबल. उन लोगों को भी गवर्नमेंट नहीं जाना था, प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उनको भी मैंने फिर एक 40% बर्न्स के इसमें फुल फिश स्किन लगा के उसको ये करके विद इन 25 days हार्डली ही वॉज इन द हॉस्पिटल, एंड 25 days में रिकवर भी कर गया. 40% बर्न्स एक्चुअली रूल कैसा होता है, इफ़ यू 50% बर्न्स 50% चांसेस ऑफ डेथ होता है. जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ते जाता है उतना चांस ऑफ डेथ आर इंक्रीजिंग. इसका 40% बर्न्स था, एंड ही वाज यंग गाय, एंड सो इमीडिएटली आई डिड द डिब्राइडमेंट, फिश स्किन लगाया मैंने उसको, एंड 25 days में पेशेंट रिकवर कर गया. और 3 साल बाद वो मुझे फिर से मिलता है. मेरा हार्ट टूटा हुआ था, आई वॉज इन अ थिएटर वॉचिंग मूवी. ही वॉज ऑल्सो केम टू द सेम मूवी थिएटर, एंड ही रिकग्नाइज्ड मी, एंड ही केम टू मी, मुझसे पिक्चर लिया. एंड द गाय दैट टाइम ही वाज 15, देन ही बिकेम 18 जब वो मुझसे फोटोज लिया था, एंड ही इज एब्सोल्युटली नॉर्मल. वाओ, ब्यूटीफुल. यूनिवर्स वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज. मतलब यूनिवर्स ने आपको पहले प्रिपेयर कर दिया, हाँ, वीडियोस भेज के कि ये आपको करना है मुझे. हाँ, ऐसा हुआ था. देन देयर आर सर्टेन स्टोरीज लाइक दिस. देन उसके बाद मुझे वो वुंड हीलिंग में जो मुझे किक मिल रहा था, द जॉब सेटिस्फैक्शन विच आई वाज गेटिंग, I was not getting the same job satisfaction when I was treating hernia, appendix, laparoscopic surgeries, जो भी complicated है, we do a lot of procedures, वो सब करने में मुझे उतना किक नहीं आ रहा था. क्यों? What I've understood कि मेरी पेशेंट से कनेक्टिविटी कम थी. पेशेंट आया, मैंने उसको सर्जरी कर दिया, उसको ठीक कर दिया, 2 दिन में पेशेंट चला गया, 4 दिन में चला गया. उसके बाद फिर नो कनेक्शन. पेशेंट ठीक है, मैं ठीक हूँ, वो मुझे भूल जाएगा, मैं उसको भूल जाऊंगा. बट व्हेन अ वुंडेड पेशेंट कम्स टू यू, दे स्टे विथ यू फॉर द पीरियड ऑफ 2 to 3 months. एंड दैट जर्नी, वो 2-3 महीने में हम लोग उनसे इतना कनेक्ट हो जाते हैं दैट मुझे भी फील होता है कि मैं उसको हील करूँ, उसको ठीक करूँ. राइट. एंड देन वन पेशेंट केम. Now this was another story, and that started AWH. This was a lady who was a tailor by profession. Okay. ठीक है. एंड उसका हस्बैंड उससे एज में भी बहुत बड़ा था, उसके 2 बच्चे भी थे, एंड ही हैज़ अ डायबिटिक पेशेंट, ही हैज़ अ फुट वुंड. Okay. एंड ये जो पैर का जो घाव था वो इतना ख़राब था कि हर मेडिकल कॉलेज में, जो हमारा नलगुंडा के आसपास जो भी थे, वो सारे मेडिकल कॉलेज गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गया, इवन दे केम टू हैदराबाद एंड वाज टोल्ड टू एम्प्यूट, पैर काट दो इनका, ये ठीक नहीं होने वाला है. शी वाज वेरी मच डिप्रेस्ड. सो 3 महीना वो यहाँ वहाँ घूमी, एंड देन समहाउ शी केम टू नो कि कोई है जो ऐसा कर रहे हैं. सो शी केम टू माई सेंटर, टू द हॉस्पिटल. उसका एडी पूरा निकला हुआ था, मतलब द बोन वाज आल्सो एक्सपोज्ड. So obviously everybody wanted to go for an amputation, but the patient came to me, और पेशेंट से बात करने के बाद वो लेडी मुझसे बोली कि आप ठीक से कर सकते हैं क्या इसको, कैन यू डू इट. मतलब एक दूसरे इस तरह से, मतलब इतनी परेशान हो गई थी. शी वॉज नॉट ट्रस्टिंग मी जस्ट बिकॉज पीपल समबडी टोल्ड शी केम. राइट. कर सकते हो, होगा तुमसे, होता नहीं होता, इस तरह से वो मुझसे बात करी थी. ठीक है, कोशिश करते हैं, अब तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास नहीं हुआ तो कहीं नहीं होगा, आप खुद बोल रहे हो. सो टेक इट एज अ लास्ट ऑप्शन एंड कीप फुल फेथ इन इट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. Within 3 months, the patient became all right. Wow. उसका wound heal हुआ, and that was the time when dermal substitutes was very new to India. Okay. Dermal substitutes. What is that? Can you tell us about? Dermal substitutes में क्या होता है, जब पैर में खून का सरफरा ठीक है नहीं, तो अगर हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करके इसको फ्लैप लगा के ये हील पार्ट जो है उसको हम लोग कवर करना चाहते हैं, तो बिकॉज ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है तो फ्लैप प्रोसीजर फेलियर चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से डायबिटिक फुट्स में यूजुअली फ्लैप्स नहीं डाला जाता है. मैनी पीपल अवॉइड, मैनी सर्जन्स अवॉइड.
plastic surgeons and all. Right. So those kind of wounds को heal करना है, it's a time taking process, होगा नहीं मालूम, flaps लगा के cover करेंगे, result आएगा नहीं मालूम, so they go for an amputation. Below knee, मतलब घुटने के नीचे तक काट देते हैं. Okay. Ideally. That was the time when dermal substitutes were actually introduced. And again इसका भी देखिए मिराकल क्या था, dermal substitutes का मैं तभी recently दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में सुन के आया था. Okay. एंड आई केम बैक टू माई सेंटर इन नलगोंडा. मुझे पास पेशेंट आया, वूंड तो मैंने अच्छा कर दिया उसको, वूंड तो अच्छा था, अब उसको बंद करना है, बट ब्लड सप्लाई कम है, ब्लड सप्लाई ख़त्म नहीं है, ब्लड सप्लाई कम है, एंड वूंड मुझे हील करना है. तो आई अप्लाइड डर्मल सब्स्टिट्यूट. द कॉस्ट ऑफ डर्मल सब्स्टिट्यूट्स वाज 80,000. Okay. Just the dermal substitute. The material cost itself was 80,000. Oh. She's a tailor by profession. She can't afford. But जिस दिन से आया, अगले 20 दिन में जो उनके हस्बैंड में जो चेंजेस उन्होंने देखा, she started gaining trust in me. And the dermal substitute जो even हैदराबाद में वो टाइम पे 2021 में इवन इन हैदराबाद 1 या 2 सर्जन्स ने शायद यूज़ किया होगा डर्मल सब्स्टिट्यूट्स. जो मैं नलगोंडा में यूज़ किया उस पेशेंट पे लगाया एंड वो वूंड अच्छी तरह से कवर हुआ. फिर उस पर हमने स्किन ग्राफ्टिंग किया, वूंड हील हुआ. उसके लिए मैंने कस्टमाइज फुटवेयर फिर मेरा दोस्त था गुजरात में, उससे मंगाया और उसको फुटवेयर दिया एंड मेड हिम वॉक अगेन ऑन हिज लेग्स, मेड हिम स्टैंड ऑन हिज लेग्स अगेन आफ्टर 9 months. सो द लेडी वॉज टेलिंग सिंस 9 months she was having 3 kids. Oh. She used to say that, सर मेरे घर में 2 बच्चे हैं, ये भी मेरा बच्चा है, इनको मैं उठा के वॉशरूम लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, बेड पे लेटाती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ एंड मुझे घर भी चलाना है. शी इज़ अ टेलर बाय प्रोफेशन, नथिंग एल्स. Right. ये स्टोरीज थी. तो वो आदमी उठा, फिर उसने खड़ा हुआ एंड अब वो स्कूटी चलाता है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आता है and he's taking care of his family now. Wonderful. So finally that patient wound healed. You know, and the man again started walking. Things were going on well. So that lady जो initially she came to me with an agony, दोनों हाथ जोड़ के she was literally in her tears कि now her husband is again walking back, doing his job. Right. So that was inspiring and these cases brought me international icon award. मुझे थाईलैंड में awards मिला. फिश स्किन ग्राफ्टिंग जो इंडिया में पहली बार मैंने किया था, yes. उसका अवार्ड मुझे थाईलैंड, मतलब जो केस मैंने फ्री में किया था थ्रू आफ्टर सीइंग अ वीडियो, वो मुझे ले गया थाईलैंड इंटरनेशनल आइकॉन अवार्ड लेने के लिए. And not only that, you have many more awards and recognitions. Yes. Yeah. So the journey of wound healing जो मैंने बर्न्स पेशेंट में की, जो मैंने डायबिटिक फुट पेशेंट्स में की, दैट इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट दिस AWH एडवांस्ड वुंड हीलिंग क्लिनिक्स. तो जब मैं ये सेंटर स्टार्ट कर रहा था, मुझे ये था मेरे माइंड में कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है अपनी प्रैक्टिस में, जो मेरे पेशेंट्स को कम्प्लीटली हील कर सके. मैं चाहता था कि मेरा पेशेंट मेरे पीछे बार बार ना आए. मतलब उसका घाव ठीक होना एक लेवल है, घाव ठीक होने के बाद फिर से घाव नहीं होना दूसरा लेवल है. अदरवाइज आजकल तो ट्रीट ही ऐसे किया जाता है कि क्या करे कि इन्हें बार बार आना पड़े. ठीक है, देयर आर पीपल लाइक दैट, बट माय इंटेंशन वाज कि व्हेन आई से वुंड हीलिंग, आई एम नॉट सेइंग वुंड केयर. आपको वुंड केयर सेंटर्स बहुत मिल जाएंगे, वुंड हीलिंग सेंटर नहीं मिलेंगे. Exactly, that's why there are none in India. I guess this is the only one in Hyderabad. Yes, because I am giving a holistic approach to my patients. Holistic approach मतलब मेरा बिलीफ ये है कि जब तक इंटरनल हीलिंग नहीं होता ना, एक्सटर्नल हीलिंग नहीं आ सकता. Right. मतलब घाव हो गया है, वो हुआ है क्योंकि अंदर से पूरा खराब है, और सिर्फ आप ऊपर से ऑइंटमेंट लगा पट्टी करेंगे, घाव ठीक हो जाएगा? Right. नहीं होगा. कोई भी डिसीज हो या वुंड हो, जितना वो आपको फिजिकली अफेक्ट करता है उतना ही मेंटली और इमोशनली भी चैलेंज करता है. अगर Now I आपका give you a small example. Yeah. For example, you are here. Yes. ठीक है, और आप बहुत स्ट्रेस में हैं. You are so much worried, stressed, depressed, or so many things are going in your mind. और आपकी फेवरेट बिरयानी आपके सामने रखी दी जाए, will you be able to eat it? नहीं ना. नहीं. भूख नहीं लगेगी, खाने का मन नहीं करेगा.
when you're happy, you got some good promotion, you got some good family से बहुत खुशियाँ मिली है, कुछ financially you got something good to know about, some good news is happening, you'll be fresh. And तब आप के सामने 2-2 बिरयानी रखो, कभी खा लेंगे आप. Right. पेट तो वही है, आदमी भी वही है, उस टाइम नहीं खा पाए, इस टाइम ये. फ़र्क क्या आ रहा है? हम लोग बोलते हैं फ़र्क कहाँ आती है? The blood supply is getting affected. Okay. When you're in stress and agony, आपके सारे blood vessels tight हो जाते हैं. Okay. So even to the blood supply to the stomach कम हो जाती है. और blood supply to the stomach कम हो गई तो stomach में acid formation नहीं हुआ. Acid formation नहीं हुआ तो भूख नहीं लगी, खाना नहीं खाओगे, पेट गैस रहता है, भरा रहता है. That's why meditation, yoga, etc. helps you. Yes, 100%. So इसीलिए हमारा जो AWH का concept है, we have worked on 3 aspects. Because I need to heal them, I don't want them to come back again. So we work on 3 aspects. Restoration, rejuvenation, regeneration. RRR. RRR. So what is restoration? Restoration में क्या है? आपकी शरीर में क्या क्या कमियां हो गई थी. जब भगवान ने हमारी शरीर बनाई तो उस शरीर में कितना विटामिन होना चाहिए, 5 ग्राम प्रोटीन्स होना चाहिए, 10 ग्राम ये होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, ऑल दिस थिंग्स राइट सब मिलके अपनी एक बॉडी बनाई है. एंड जब वो सारे चीज़ें, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब जगह पे अपने अपने जगह पे सही हैं, तो फिर डिसीज आएगा क्यों? जब इम्बैलेंस होता है देन इट प्रोग्रेस इनटू सम साइंस एंड सिम्टम्स व्हिच एंड अप इनटू अ डिसीज. राइट. एंड व्हेन इट कम्स टू रिजुविनेशन, तो हम लोग पेशेंट को पहले रिस्टोर करते हैं कि और ख़राब होने से रुके पहले. उसके बाद जो ख़राब हुआ है उसको ठीक करना है. फिर थर्ड स्टेज में जो ठीक हो गया है वो फिर से रिपीट नहीं होना है. That's how I divide the work. Let it be any wound, let it be burns wound, let it be diabetic foods or any wound in the body. डायबिटीज़ आजकल काफ़ी कॉमन है. सो उसका रूट कॉज सिर्फ स्ट्रेस है या कोई अदर फैक्टर्स भी हैं? नहीं, डायबिटीज़ का रूट कॉज देयर आर मेनी थिंग्स, बट द मेजर इशू इज स्ट्रेस. क्योंकि स्ट्रेस से ही डिसीज स्टार्ट हो रही है. क्योंकि स्ट्रेस की वजह से ब्लड सप्लाई कर रही है, आपका खाना पीना टाइम पे सोना, एवरीथिंग डिस्टर्ब होने लगता है. एंड अल्टीमेटली दैट कॉजेस माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज इन योर बॉडी, दैट लीड्स टू क्रॉनिक इलनेस. क्रॉनिक इलनेस में मोस्ट कॉमन क्या है? डायबिटीज़. दैट्स हाउ इट्स हैपेंस. सो अभी होता क्या है, द सेकेंड थिंग, रिस्टोरेशन के बाद सेकेंड थिंग इज रिजुविनेशन. रिजुविनेशन में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? देयर इज नो क्लीनिंग, देयर वोंट बी एनी हीलिंग. ओके. तो पहले क्लीन होना है. दैट्स वेयर तत्या colon hydrotherapy you would have seen in my center. Yes. And infrared sauna is also there. So ये concept मैंने इसलिए start किया था क्योंकि मैं believe करता हूँ जब तक cleaning नहीं है healing नहीं होता. Definitely. So clean करने के लिए क्या चाहिए? Why you need cleaning? उसका reason क्या है कि suppose you have a car, you have a good car, कुछ अच्छी ब्रांडेड कार है आपके पास. तो वो जो ब्रांडेड कार है इसलिए ब्रांडेड है क्योंकि वो एक्सपेंसिव है और उसका मेंटेनेंस भी हाई है. Yes. एंड यू डोंट वांट अ रिपेयर इन योर कार, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? Clean. अपनी कार की मेंटेनेंस करानी चाहिए. once in 3 months, once in 6 months अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करानी चाहिए. Yeah. राइट. बट हमारा शरीर जो है, दिस इज ऑल्सो आवर व्हीकल. योर सोल इज ट्रैवलिंग इन दिस व्हीकल. हमारी बॉडी की मेंटेनेंस कहाँ है? अपने गट में. यस. सो 70% of the diseases starts from the guts. हमारे दादा दादी सब लोग बोलते थे अपना पेट साफ रखा करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया पेट साफ नहीं है. बट आइडियली दैट इज ट्रू. नाउ एलोपैथी, नाउ वी हैव कम इन टू अंडरस्टैंडिंग, वी हैव मेड सो मेनी एडवांसेस. अभी तो गट माइक्रोबायोम पे इतना रिसर्च हो रहा है. इट्स वर्किंग ऑन डिप्रेशन, इट्स वर्किंग ऑन कैंसर्स. गट माइक्रोबायोम का इतना रोल है. आपकी ब्रेन को, आपकी थॉट प्रोसेस को पूरा कंट्रोल में रखता है गट माइक्रोबायोम.
Right. और जब वो गट ही साफ नहीं है तो डिसीज तो होना ही है. सो ऑल माई पेशेंट्स हु कम टू AWH सेंटर, मैं सबसे पहले उनका डिटॉक्स कराता हूँ, उनकी गट क्लीनिंग कराता हूँ. ओके, सो तथ्य का जो हाइड्रोकोलोन थेरेपी है वो एक एडवांस टेक्निक है, एंड इज इट इंस्पायर्ड फ्रॉम द एंशिएंट टेक्निक्स दैट वी यूज्ड टू प्रैक्टिस, और वो किस तरह से काम करता है? Now I tell you, it is inspired definitely वहीं से आया है. जो हमारी एंशिएंट टेक्निक है इंडिया में जो होती थी गट क्लीनिंग की, उससे इंस्पायर्ड है, नो डाउट. जल बस्ती एनीमा कहते थे हाँ, it is inspired from that, no doubt, but it is far more advanced than that. राइट. Far more advanced. फर्क क्या है? वो जो हम लेते हैं that, see, it is only cleaning up to the rectum. बट पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए आपको कोलोनोस्कोपी करा के वॉश कराना पड़ता है, जो भी प्रॉपरली होता नहीं है. एंड दिस इज मोर एडवांस, जहाँ पे आपको कोलोन पूरा डिटॉक्स हो जाता है, पूरा क्लेंस होता है विद इन अ स्पैन ऑफ 40 मिनट्स. ओके. एंड द फ्रेशनेस यू फील आफ्टर दैट इज इमेंस. समबडी हैज टू एक्सपीरियंस इट, तभी उसका फ़र्क आपको दिखता है. मतलब होता क्या, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वॉल, यू सी अ नाइस वॉल हियर, उस पर मुझे अच्छी पेंटिंग करनी है. तो मुझे पेंटिंग करने से पहले क्या करना है? वो वॉल जो है, जो गंदा है, उसको पहले पूरी अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको साफ़ करेंगे, पूरा रेडी करेंगे, उसके बाद ना पेंट करोगे. राइट. Similarly, your gut is also like that. If you want your disease to be out of your body, what you do? You take good food, you take good medicines, but this good food and good medicines will not be absorbed by your body. तो फिर क्या फ़ायदा? राइट. तो वो एब्जॉर्ब तभी होगा जब वो क्लीन होगा. ओके. हमारा बॉडी सिस्टम कैसे रहता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. स्टमक में फूड आया, डाइजेशन शुरू हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन ख़त्म हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ. द रोल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब द फूड वॉट एवर यू आर टेकिंग इन. राइट. एंड जब हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ही पूरा जैम पैक्ड है, तो तुम कितना भी अच्छा खाओ, बॉडी एब्जॉर्ब कहाँ करेगा? And this colon hydrotherapy will make your gut like a reset button. You put it on your phone. So fresh. It helps in many diseases like All this my IBH wounded है. patients, all my wounded patients, not just gut issues, all my wounded patients, सब लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप wounds में क्यों कर रहे हैं colon therapy? I tell, उसका wound जो हुआ है उसकी gut से start हुआ है. अगर उसका गट ठीक होता, if his gut was absorbing all the nutrients, if his gut was absorbing all the medicines and all the good food he is taking, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती ही नहीं, ब्लड वेसल्स बंद होते ही नहीं, उसका शुगर बढ़ता ही नहीं. ओके. और उसका घाव होता ही नहीं. राइट. सो मैं उसको रिस्टोर करने से पहले उसको क्लीन करता हूँ. तो फुल कोलॉन जब क्लीन हो गया, उसका कंप्लीट डिटॉक्स हो, उसके बाद उसको दवाई दूंगा, उसका गट, उसका बॉडी एब्जॉर्ब करेगा. उसके बाद उसको अच्छा न्यूट्रिशियस डाइट प्लान दूंगा, वो उसके हिसाब से काम करेगा. Which means ये सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, आई थिंक नेसेसिटी है आज के ज़माने में. You don't want a disease, clean your guts. राइट. You are already diseased, clean your gut. You have recovered from a disease, you don't want a disease again, keep your gut clean. राइट. सो एक तो हमारा ये जो कोलोन हाइड्रोथेरेपी, इसके अलावा क्लीनिंग के लिए, क्लिनजिंग के लिए, डिटॉक्सिफाइंग के लिए फार इंफ्रारेड सोना भी हर्ड इज Far वेरी गुड. infrared sauna is very popular abroad. ओके. इंडिया में उसका कल्चर अभी उतना ज़्यादा आया नहीं है. हाँ, कुछ वेलनेस सेंटर्स वाले यूज़ करते हैं, बट मेडिकली हॉस्पिटल्स में उसका अभी उतना कल्चर आया नहीं है. बट आई टेल यू द डिफरेंस कहाँ आती है. जैसे आप घर में हम लोग स्टीम लेते हैं, तो भाप जो जनरेट होता है वो आपके स्किन पोर्स में से स्वेट को निकालता है. राइट. Actually you're detoxifying, but the actual toxins are deep to your skin tissues, deep into the soft tissues. Soft tissues में क्या क्या आता है? आपके fat, muscles and all, है ना. So far infrared का और regular steam, of course it is inspired from that. This far infrared has a deeper penetration. Okay. It goes deep inside your skin and up to the the bones. subcutaneous fat.
फैट लेवल तक जाता है और डीप जाता है, जहाँ जहाँ फैट नहीं है वहाँ पे बोन तक टच करेगा. It's not even harmful, right? It's very beneficial for the skin. 100% बेनिफिशियल. लाइट थेरेपी एक होती है. विथ लाइट थेरेपी मैनी पीपल हील देम. एक वेवलेंथ होती है जो हमको हील करेगी. एवरी कलर हैज़ अ डिफरेंट थिंग. Right, I एंड was coming. फार इंफ्रारेड में क्या होता है, द हीटेड टेम्परेचर के साथ जब वो इंफ्रारेड लाइट जाती है, स्पेशली इनका जो डिवाइस है, इसमें क्या होता है, देयर इज अ वॉल इम्प्रेग्नेटेड विथ मैग्नीशियम. Okay. एंड द हीट विच इज़ गेटिंग जनरेटेड, जो फार इंफ्रारेड लाइट आ रही है, वो मैग्नीशियम के साथ लेके तुम्हारे स्किन के डीपर टिश्यूज तक पहुंचती है. और जब ये एंटर करती है तो वहाँ से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं इज़ फार 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 रिजुनेटिंग दैन द रेगुलर स्टीम विच वी टेक. Okay. Interesting. So इसके तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पेशेंट्स को हमने पूरा कोलॉन डिटॉक्स किया. right. उसके बाद हेड टू फुट इंफ्रारेड दे के उनको पूरा डिटॉक्स किया. सो वी आर डिटॉक्सिंग हिज बबल्स, वी आर डिटॉक्सिंग हिम एज ए होल, द पेशेंट एज ए होल, Skin, द organs, वे ही इज everything. रिजुवनेटिंग. Yeah. उसके बाद तुम अपना मेडिसिन दो, उसके बाद तुम उसका डाइट प्लान दो, उसके बाद उसका सर्जरीज करो, उसका वुंड हीलिंग का काम करो, वो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स देता है. इट इज़ नॉट गिविंग अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, बट इनडायरेक्टली इट इज़ preparing yourself for the disease to be treated. Right. So these two are wonderful things which I think everybody should incorporate in their daily life. Like I said, if you don't want a disease, लेना है. If you are diseased, तो ठीक होने के लिए लेना है. Future में नहीं आने के लिए फिर You have लेना to take है. it, So everybody needs this. This is the need of the hour. Because हम लोग जितने स्ट्रेस में हैं, जितने टॉक्सिन्स हैं, जितना 100 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे उन लोगों का खाना अलग, उनका पानी अलग था, उनकी एनवायरनमेंट में जो सांस लेते थे, द एयर वाज डिफरेंट. और उन लोगों को इतना जॉब स्ट्रेस नहीं था, इतने डिसीजेस भी नहीं थे. Right. नाउ व्हेन यू आर एट दैट स्टेज, हमारी मेंटेनेंस बढ़ गई है. उसके लिए कोई तो हमारे हमें रिपेयर अगर substitute चाहिए. तभी होगा जब अपनी मेंटेनेंस सही है, तो रिपेयर की ज़रूरत ही नहीं. Right, right. Wonderful. It was wonderful talking to you. We had a very good time in your center as well. बहुत सुंदर है, एनर्जी ऑरा बहुत अच्छा है आपके सेंटर का और आपका भी सर. Thank you so much for the valuable information and insights that you have given your time. I hope to see you very very soon. Healing सिर्फ physical level पे नहीं होती. Healing is also energetic. तो जब हम हमारा गट क्लीन करते हैं या स्किन को क्लींस करते हैं, जैसे कि हमने बात किया थेरेपीज़ के बारे में, इसी तरह energetic cleaning, which is also called spiritual healing, is also very important for you, which happens through meditation, through yoga, through mindfulness. And उसी के रिलेटेड आज का हमारा सेशन था. आई होप ये हेल्पफुल रहा हो आप सबके लिए भी. थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग अस ऑल हियर. आपका सेंटर बहुत सुंदर है. द ऑरा, द वाइब इज़ ब्यूटिफुल, एज वेल एज योर वाइब इज़ वेरी एनर्जेटिक, वेरी ब्यूटिफुल. वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम हियर. थैंक यू फॉर हैविंग अस ऑल हियर, एंड आई होप टू सी यू वेरी सून.